میری عمر 15 سال ہے اور میں کراچی کے شیخ بلی پنجاب میں رہتا ہوں. جی تو بہت صحیح. تو ریحان میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کا پتہ کس طرح چلا تھا؟ جی مجھے ریحان اسکول کے بارے میں سوشل میڈیا یوٹیوب کے ذریعے پتہ چلا. یوٹیوب کی وجہ سے. جی تو بہت صحیح. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول میں کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ جی مجھے ریحان اسکول میں تقریباً 6 months ہونے والے ہیں. جی تو بہت صحیح. تو میرا آپ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جب آپ ریحان اسکول میں فرسٹ ٹائم آئے تھے تو آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا؟ جی جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا تھا اور مجھے یہاں کے سسٹم کے بارے میں پتہ چلا. جی تو بہت صحیح. تو عبدالریحان فری لینسنگ والا میرا آپ نے کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے فری لینسنگ والا کیوں چوز کیا اپنے نام کے ساتھ؟ جی اس اسکول سے آنے سے پہلے بھی میں نے کافی فری لینسنگ کے بارے میں سنا تھا اور اس میں میرا تھوڑا انٹرسٹ بھی تھا تو اس لیے جب ریحان اسکول میں آیا تو انہوں نے بولا کہ کوئی والا چوز کرے. یہاں پہ ایک والا بہت سارے والا ہوتے ہیں لیکن فری لینسنگ والا بھی تھا. مجھے پہلے بھی انٹرسٹ تھا اس میں تو اس لیے میں نے فری لینسنگ چوز کیا. جی تو بہت صحیح. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ فری لینسنگ کیا ہے؟ جی فری لینسنگ میں آپ کوئی بھی اسکل جیسے گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ اور کوڈنگ کی آپ کوئی بھی ایک اسکل ہو جس کی مدد سے آپ ارننگ کر سکتے ہو. جی تو بہت صحیح. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا جو نیکسٹ جو میرا کوشچن ہے آپ بتائیں کہ آپ جب آتے ہیں صبح ریحان اسکول تو آپ کی صبح سے لے کر ابھی تک کی چھٹی ٹائم کی کیا وہ ہے روٹین اور آپ کسی انٹرنشپ میں ہے یا نہیں ساری چیزیں بتائیں صبح سے لے کر. جی پہلے تو صبح اٹھنا اسکول کے لیے میں ناشتہ کرنا تیار ہونا پھر اسکول کے لیے نکل جاتے ہیں. پھر اسکول پہنچتے تقریباً 1 گھنٹے یا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور پھر اسکول پہنچتا ہوں. پھر اسکول پہنچنے کے بعد اوسدیاں ہماری اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ ہوتی ہے پورے پونے گھنٹے کی 8 بجے سے لے کے 8:45 تک. اس میں موسیقی کرتے ہیں ہمارا تو اوپر والا فلور سب سے سیکنڈ فلور تو وہ سب پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہماری اسمبلی شروع ہوتی ہے. اسمبلی میں پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر رب زدنی علما پڑھتے ہیں پھر لبے آتی بھی پڑھتے ہیں پھر ترانہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری کبھی کبھار یوگا ہوتی ہے اور ویسے تو ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو یوگا ہوتی ہے. تو اس کے بعد کلاس میں جاتی ہے. کلاس میں آنے کے بعد ٹاسک کرنے ہوتے ہیں پھر کوڈنگ اور ایڈیٹنگ کی کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں دونوں کی دونوں ٹاسک کی وجہ دونوں کلاسز کی وجہ سے آئی ٹی لیب میں آ جاتے ہیں. آئی ٹی لیب میں بیٹھ کے اب دونوں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. دونوں کلاس میں جو بھی ٹاسک ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری بریک ہو جاتی ہے. بریک میں کسی کو آڈیٹوریم جانا ہوتا ہے تو آڈیٹوریم چلے جاتے ہیں ورنہ وہ کلاس میں رک سکتا ہے. تو بریک کے بعد ہماری سر زبیر ہمارے ہمیں بس ایک اسپیچ دے کے جاتے ہیں اور ان کی بھی ایک کلاس ہوتی ہے ارننگ کلاس جس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ارننگ کیسے کرنی ہے. تو اب جو ارننگ اسٹارٹ کری ہے وہ ابھی ہم نے گھر سے اسٹارٹ کری ہے اور جو وہ اسپیچ دیتے وہ ہوتی ہے اپنے کے بارے میں بس تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم 2 بج جاتے ہیں.
2 बज जाते हैं और 2 बजने के बाद वही मैं 1 घंटे के लिए मैं मतलब लंच टाइम होता है तो उसमें लंच करते हैं। मैं लंच का तो घर से रोटी सालन लेकर आया था तो उससे रोटी मतलब खाते हैं फिर ले आकर साथ में से रोटी होता है। तो फिर 3 बजे अगर टीचर आ जाते हैं ये इन्होंने कोई टास्क दे देता है वो कर देते हैं मतलब एज अ इंटर्न के तौर पे। और अगर नहीं देना होता तो हम अपने जो स्कूल के टास्क होते हैं वो कर लेते हैं। तो इतने में 7 भी बज जाते हैं। 7 बजे से चले जाता हूँ घर जाके तकरीबन वही मेरा एक आधा पौना 1 पौना घंटे का सफर होता है उसमें तकरीबन मैं 8 बजे 8:15 पहुंच जाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नहाता हूँ धोता हूँ पीता हूँ और फिर मोबाइल चला के सोता हूँ। जी तो बहुत सही। तो जी तो बहुत सही। तो रेहान मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। जी मेरी जो भी लाइफ का गोल है वो तो अभी बस यही यहाँ पे अभी तो मैं बस यहाँ पे सीखूंगा और फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा यही फ्रीलांसिंग। जी तो बहुत सही। तो रेहान मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आप जब आए थे फर्स्ट टाइम तो आपका पहला मीटअप किससे हुआ था। जी जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था तो मेरा पहला मीटअप अगर अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल वाला उससे बात की जाए तो सर वो अल्ताफ एजुकेशन वाला है और ईमान ईमान है मिस ईमान इनसे हुआ था और उसके बाद मेरी क्लास टीचर मेरी क्लास टीचर से हुआ था। जी तो बहुत सही। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपकी हॉबीज बताएं आप अपनी फेवरेट। जी मेरी फेवरेट हॉबीज जो मैं फारिग वक्त में करता हूँ तो वो बाहर अगर दोस्तों के साथ घूमना हो तो वहीं चला जाता हूँ वरना घर पे ही रहता हूँ। जी तो आपको बाहर जाने से क्या मिलता है। जी बाहर जाने से मतलब एक अलग ही खुशी मिलती है जब उन दोस्तों के साथ घूमना था तो मजा आता है हंसी मजाक करते हैं, तो इसलिए मैं बाहर जाती हूँ। जी तो आप सीधे अल्फाजों में नहीं कहना चाह रहे कि टाइम ज़ाया करता हूँ मैं। जी बहुत सही। तो खैर है आप टाइम ज़ाया करते हैं तो खैर है कुछ मत इतनी बड़ी बात नहीं है। हर कोई अपनी इस उम्र में टाइम ज़ाया मतलब खेलता कूदता है। तो इससे अच्छा कोई स्किल वगैरह सीखें कोई नई चीज़ सीखें आप सैलानी चले आएँ या ऑनलाइन का रहने वाले कोर्स देखें आप लेकिन आप टाइम ज़ाया नहीं करें अपना प्लीज़ क्योंकि अभी आपका जो उम्र है आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। देखिए आपकी फैमिली इतना एफर्ट लगा के आपको स्कूल भेज दिए यहाँ स्कूल भेज दिए और आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं चलता ना आप टाइम ज़ाया नहीं करें तो इसी से ही आप कामयाब भी होंगे। ये मेरा सबके लिए लेक्चर है। तो सबको मैं यही मैसेज देता हूँ कि वक्त बहुत ही कीमती है और उसके लिए आपको अपना जो काम का टाइम है वो भी अगर कोई आपको कोई काम दे तो आप फालतू काम को छोड़ के जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपको काम करें। जी तो बहुत सही। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपको कैनवा पोस्ट बनाने आती है और किससे बनाते हैं आप कैनवा पोस्ट। जी मैं जो कैनवा पोस्ट बनाता हूँ वो मैं कैनवा से बनाता हूँ और उसमें हमें टेक्स्ट मिलते हैं ग्रुप में तो टेक्स्ट कॉपी करके जी 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 तो बहुत सही। तो रेहान मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि कैनवा क्या है।
कैंप में एआई टूल है जिसमें जैसे कि फोटोशॉप और बहुत सारे कैपकट की तरह उसमें भी टूल्स होते हैं जिससे आप एडिटिंग कर सकते हैं। जी तो बहुत सही। तो रेहान, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएंगे आपका घर रेहान स्कूल से कितना दूर है और आपका कॉन्वेंस क्या है, किस तरह आते हैं? जी मेरा यहाँ से जो घर है वो है 37 किलोमीटर दूर है, और मैं ये कन्वेंस से तो नहीं आते, बस जो लोकल लिफ्ट से चल रहे होते हैं उनसे आते जी तो बहुत सही। तो आप बता सकते हैं कि आपका घर कौन से एरिया में? हैं। जी मेरा घर भले ही पंजाब में है। जी तो मलिर 15 से आप आते हैं यहाँ से कुछ कहीं के ऊपर। जी तो उसमें भी आपकी जैसे कि आप रोज रोज लोकल न्यू बस पे चढ़ते हैं तो वो भी आपके न्यू एक्सपीरियंस होता होगा। बहुत सही है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह से आप मेहनत करते हैं यहाँ स्कूल में। आप क्या क्या करते हैं आप बताएं। नहीं, अभी आप ये बताएं कि आप जो किसकी इंटर्नशिप में और क्या क्या काम करते हैं? जी मैं सर बोलते रहता हूँ कि अगर वो कोई टास्क होते तो वो करता हूँ, और इसके अलावा सबसे जी तो सही। तो आपने सर मोहसिन की इंटर्नशिप में क्या क्या टास्क किए हैं? वीडियो एडिट करी है सरियाज की, और सबसे 5 से 6 पोस्टर बना। जी तो बहुत सही। तो आपको कितना टाइम हो गया सर मोहसिन राठौड़ की इंटर्नशिप में? मुझे सर मोहसिन राठौर की इंटर्नशिप में 20 हो जाए। जी तो बहुत सही। ऑलमोस्ट मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई आप अपने 3 फेवरेट फूड बता दें खाने के। मेरे सीजन फूड जो है वो है, फूड से बात की जाए तो बर्गर, पिज़्ज़ा और घर का भी कोई सा। जी तो बहुत सही। तो आप कोई अपनी 3 फेवरेट स्वीट्स बता दें, मिठाइयाँ वगैरह। जी स्वीट्स में अगर पसंद है तो वो जो आइसक्रीम वाले आते हैं उनसे ले लेते हैं कोई आइसक्रीम, या कोई आइसक्रीम केक बस। जी जी बहुत सही। तो आपको कोई मिठाई विठाई नहीं पसंद, बस आप आइसक्रीम ही खाते रहते हैं? ठंडे ठंडी चीज आप क्यों खाते हैं? जी इससे आपकी सेहत खराब होगी। जी आपका फिर मैं घर। जी मैं जी मैं हर बार आइसक्रीम नहीं खाता, कोई महीने में वो खाता हूँ, और स्वीट्स बाकी जो होती है जैसे गुलाब जामुन वगैरह तो ये मुश्किल ही तो सब खाती फिर भी आप क्यों खाते हैं? गला खराब होता है। जी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं हर वक्त नहीं खाता, और ना ही मैं जी जी मैंने सुन लिया, मुझे समझ में आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको एक बात गला कहना खराब चाह रहा होने था का लेकिन आप सवाल मेरी ही बात काट रहे हैं, शायद आपको ये गलती होगी। देखें, मैं ये आपको बात करना चाह रहा हूँ कि आप अगर देखें आइसक्रीम, आप बोल रहे फेवरेट, बंदा फेवरेट काम रोज रोज करता है अपना, सही है। तो अगर आप रोज आइसक्रीम खाएंगे आपका गला खराब होगा, खांसी होगी, बुखार होगा। तो उसकी वजह से फिर आप स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल नहीं आएंगे तो क्या आपको टाइम घर पे टाइम वेस्ट करेंगे आप, सही है। तो इससे अच्छा आप स्कूल आए, कुछ ना कुछ सीखें। और सर मोहसिन राठौड़ की आप इंटर्नशिप में, जो कि बहुत ही परफेक्ट बंदे हैं, और उनकी इंटर्नशिप में मैं भी हूँ तो बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है उनसे। जी तो बहुत सही। तो रेहान, मैं आखिर में अपने हार आने वाले गेस्ट से यही कहता हूँ कि वो कोई मैसेज या कोई एडवाइस या कोई पैगाम देना चाहे मेरे अपने देखने वालों को, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी पे कब देते होंगे, वो भी डांस स्कूल है, डांस स्कूल पे। जी तो बहुत सही। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट अब्दुल रेहान फ्रीलांसिंग वाला। तो मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, किसी और नए लाइव शो में, किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलकर ना लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद।